Okay, so yesterday we were discussing about this partition by. So in partition by, what we saw is we saw we had a data like this, and in this in each department we were doing the salaries in ascending or descending order. We were doing that. Okay, so we have done this like select a star. This is row number, and a star means the all existing columns will come, and after all existing columns, one new column will come that will be considered as means this is the entire syntax that you have to take. So this is row number over partition by employee ID order by salary. Okay, so employee ID wise, this is to be partitioned, and each employee ID will be ordered by salary itself in ascending order. Since we have not mentioned anything over here, so no, by default it will take in ascending order. If you want this to be done in descending order, you can type as DESC over here. Okay, so this is how we were doing. Now somebody could ask that this the same thing could be done with the order by also. Then why do we require this partition by? That was the question last day. So now the answer to this question is, if suppose if you want the salary for each department, what is the highest salary if you want? How would you find out? In every department, what is the highest salary you have to find, and in output only that part needs to come. So ideally what should come in output? On this one, this value should come, then this value should come, and this value should come, and then this four value, only these four need to come, right? So how this can be done, right? So this is to be done. This can be done with this partition by option only. This cannot be done alone with order by. Order by can give you the sorting. It can sort your data based on the parameters you have selected. But if in those sorted positions, if you have to find something specific, right, like a highest salary, yeah, or first three highest salaries, or lowest salary, first to lowest salary, or like this, if you have to uh, find a portion of that, then what you have to do is you have to use this partition by. So these partition by functions are basically they are called the window functions, right? So these window functions has to be applied, and then you will be able to do your work. So now how we will do this? So to do this in this table itself, what we'll do is simply um, we'll write select star and from salaries. Okay, this is the salaries is the table name, and in what we want in this salary table. So for all values. Then after that, what we want is we'll do we'll take a subquery out of it. So in subquery, what we'll do is from and in this we'll do subquery. So this will be like select select star comma, and now here we have to give that partition by thing. So we can do it like row number, row underscore number over, and then inside this the same partition by needs to type partition by, and in partition by we have to do is PMP ID order by salary. And now here we'll do in descending because we want the highest salary.
So we'll what we'll do is we'll sort all the salaries department wise in descending order, and we'll take the topmost value, right? So we'll get the highest salary. So this is what we are going to do as here as we have given a column name to this, so we can this as cell rank. We have given this name, and then we'll give it as from salaries. Okay, from salaries, and then we will close this, and suppose sub T we are giving as a name sub T. Okay, so this is the name of this, and finally, what will apply over here is will apply over here is where cell underscore rank is equal to 1. Okay, I'll explain you this in some time. What actually this means is, okay. So don't worry. This query might look a little overwhelming, but for the advanced cases, you have to do these queries like this only. Okay, so there is an error. Um, AMPID and salary per month. What all the columns are there in the salary table? Salary table, salary month. Okay, salary month. Okay, so now here's now select start from this row number over partition by MPID. Okay, order by salary descending as this salary rank. Okay, we'll do this again. AMPID. Let it like this. Okay, so now here you can see is you are getting these four salaries only. This is only what we were expecting. यही हम चाह रहे थे अपने आउटपुट में. आर यू ऑल देयर? हमें क्या चाहिए था? हमें हर एम्प्लॉय की हर एम्प्लॉय की जो भी उसकी हाईएस्ट सैलरी है वो हमें चाहिए थी. तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी. ये आ रही है. 101 is 52,000 in February. Then 102 is 61,000 in February. 102 is 61,000. 103 is 57,000 in February. So that's what we are coming. And then 104 final only. So what we are getting is the highest salary of each employee, right? Highest salary of each employee we are getting over here. Okay. Yes, no. Yes, sir. ओके, सो अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और सैलरी मंथ हमने हमने यहाँ पे लिया. यहाँ पे अंदर हमने ये एक के सब क्वेरी बनाई है. अब ये सब क्वेरी क्या कर रही है? ये सब क्वेरी इसमें वही जो काम यहाँ पे किया था, यहाँ पे वो हमें हमने रो नंबर को अलग से हम शो कर रहे थे. यहाँ पे हम रो नंबर को अलग से शो नहीं कर रहे हैं. ओनली व्हाट वी आर डूइंग इज हमने वही काम करके सैलरी को एक रैंक दे दी, राइट. और लास्ट में इसी रैंक पे हमने यहाँ पे ये लगा दिया सेल सेल रैंक इज इक्वल टू 1. अगर हम सपोज यहाँ पे ये हटा देते हैं
और अभी इसको हम रन कराते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन रन कराते हैं, तो देखो क्या आएगा। स्क्रीन तो नॉट विजिबल। क्या हुआ? सर स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन तो मूव हो रही है, मुझे तो दिख रही है। सर मैं मुझे नहीं दिख रही सर। एवरीवन एल्स? मतलब हो रही है, मूव हो रही है सर स्क्रीन। विशेष, आप अपने एंड पे कनेक्शन चेक करो। ओके, मैं इसीलिए अब दो स्क्रीन से ज्वाइन करता हूँ कि जिससे मुझे भी पता लग जाए। ओके, सो प्लीज विशेष चेक कनेक्शन ऑन योर साइड, शायद कुछ गड़बड़ हो। ओके सर। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लेते हैं और इसको इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमें ये क्या दे रहा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये हमें पूरा पूरा डेटा दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी और सैलरी मंथ पूरी उसने उसको उसको सॉर्ट किया है, और सॉर्ट करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे दे रहा है। एंड जब हमने यहाँ पे ये सैलरी रैंक लगा दी, तो अब यहाँ पे जब सैलरी रैंक लगाने पे क्या हुआ, सैल रैंक लगाने इज इक्वल टू 1 लगा दिया। अब अगर यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर की हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो हम यहाँ पे रैंक 2 कर देंगे। अगर थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो हम यहाँ पे रैंक 3 कर देंगे। राइट। अगर हमें सपोज चाहिए कि हमें फर्स्ट और सेकेंड रैंक दोनों की चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल रैंक इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों रैंक्स आ जाएंगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सब रन टी कर, का क्या मतलब है? ये सब टी क्यों लगाया है ये? ये सब टी यहाँ पे हमने इसलिए लगाया है कि हम ये जो हमने यहाँ पे ये एक सब क्वेरी बनाई है ना, ये फ्रॉम की जगह पे हमने ये पूरी सब क्वेरी दी है। ठीक है। तो इस पूरी क्वेरी से जो भी टेबल क्रिएट होगी, उसका नाम हमने सब टेबल दे दिया है, सब टेबल। ओके। ओके, एस करके देते हैं नेम तो अपन, एस एस सब टी। नहीं, यहाँ पे अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड को नाम देना हो, तो आप एज करके देंगे, लेकिन अगर आप टेबल को नाम नाम देना होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें देख रहे थे ना, यहाँ पे फ्रॉम में एम्प्लॉय के साथ में हमने एलियस दिया था, सैलरीज के हम्म। साथ में एलियस दिया था, तो यहाँ पे एज नहीं यूज किया था ना। ओके ओके। हम्म। ठीक है। तो जब भी हम टेबल को कोई एलियस देंगे, टेबल के लिए कोई नाम देंगे, तो उसके लिए हमें एज लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे हमें उसको उस कॉलम का नाम देना है, तो हम वहां पे एज लगाएंगे। क्लियर है? हम्म। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे दिया कि रैंक लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? और ये यहाँ पे फ्रॉम के अंदर सेलेक्ट स्टार कॉमा क्यों लिया है? ये हमने सब क्वेरी बनाई है। सब क्वेरी मीन्स बेसिकली फ्रॉम के बाद क्या आना चाहिए, एक टेबल का नाम आना चाहिए। बनना हम यहाँ आना पे चाहिए। हम हम यहाँ पे पूरी टेबल नहीं दे रहे हैं। हमने यहाँ पे एक इस क्वेरी के थ्रू एक नई टेबल क्रिएट की है। अच्छा, ठीक है। मतलब हाँ, सेलेक्ट स्टार से वो पूरी टेबल भी आ जाती है ना? हाँ, सेलेक्ट स्टार से पूरी टेबल भी आ जाती है, और यहाँ पे हम वो पूरी टेबल, एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम इसके थ्रू, और उसी टेबल की हम एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और सैलरी मंथ प्रिंट करा रहे हैं। ओके। ठीक है। तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। इसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी क्रिएट करना, तो ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वेयर के साथ में भी आप सब क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे सैलरी रैंक लेस देन और इक्वल टू 2 किया है। तो अब जो दो टॉप की सैलरीज हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ पे 101 के लिए दो टॉप की सैलरीज 52 एंड 50। 102 के लिए जो दो टॉप की सैलरीज हैं, यहाँ पे आ गई 61 61। देन इसके लिए दो टॉप की सैलरी 57 55। इसके लिए एक ही है, तो वो यहाँ पे एक ही आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 101 की 3 एंट्रीज हैं, 102 की भी 3 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे 3 एंट्रीज, 102 की 4 एंट्रीज हैं बेसिकली। राइट। 103 की टू टू एंट्रीज हैं। ठीक है। तो जो टॉप की 2 एंट्रीज हैं वो आ रही हैं, बाकी नहीं आ रही हैं। ठीक है।
ये चीज क्लियर है? यस सर। अब इसी में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं रैंक। ठीक है, तो रैंक हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये रो नंबर आ रही, रो नंबर की जगह पे हम यहाँ पे रैंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो रैंक में मीन्स हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और कौन हाईएस्ट है, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किसके सबसे कम मार्क्स आए, उसके बेस पे हम यहाँ पे रैंक देंगे। राइट, तो कैसे हम देंगे, जो अभी ऊपर हमने किया था वैसे ही हम करने वाले हैं। तो लेट्स से सेलेक्ट स्टार कॉमा, अब यहाँ पे रो नंबर की जगह पे हम देंगे रैंक, रो नंबर की जगह पे दे दिया रैंक ओवर एंड पार्टीशन, पार्टीशन बाय ईएमपी। और इसमें रैंक आपको उतने शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए, तो इसके लिए हम एक दूसरी टेबल क्रिएट करें क्या। um, give me a second, I'll just take example from my system. ओके, दिस इज इट। तो यहाँ पे हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल क्या है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट के मार्क्स की टेबल है। और इसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। ठीक है, ये हमने टेबल क्रिएट करी, टेबल क्रिएट करके अब हम उसको रन कराते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास अच्छा अभी टेबल नहीं है क्योंकि हमने टेबल को प्रिंट ही नहीं कराया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक नई टेबल आ गई, इसमें लेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेंथ दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट की लेंथ 10 ही कर देते हैं और सब्जेक्ट भी हम इसकी लेंथ 10 कर देते हैं, तो हमें छोटा छोटा दिखाई देगा फिर। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट होके आ गई। अब इस स्टूडेंट टेबल पे हम यहाँ पे इनकी रैंक फाइंड आउट करेंगे कि क्लास में इनकी कौन सी रैंक है। ठीक है, क्लियर है? तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे रैंक लगाएंगे, तो सेलेक्ट स्टार कॉमा और यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स हमारी टेबल है, यहाँ से हम लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले जो पहले जो चार कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये तो सारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चौथा कॉलम आएगा कि रैंक का कॉलम आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैंक, रैंक फंक्शन यहाँ पे लेंगे, रैंक ओवर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे डालना है। अभी अब हमें यहाँ पे केवल डायरेक्ट जो मार्क्स हैं हमें उनको रैंक में कन्वर्ट करना, तो हमने यहाँ किया ऑर्डर बाय, और हमने यहाँ पे दे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि रैंक हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पोजीशन, राइट, पोजीशन इन, चलो सिर्फ पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन इन क्लास कर देते हैं थोड़ा सा, पोजीशन इन क्लास। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डाला, अभी हमने यहाँ पे इसको रन कराया। अरे सॉरी, यहाँ पे हमने मार्क्स नहीं डाला, मार्क्स ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रैंक आ गई, जो क्लास में जो रैंक है पोजीशन इन क्लास करके, और यहाँ पे वन वन, क्योंकि ये 95 है तो उसकी दोनों वन आ गई, 90 है
अब यहाँ पे 3 आ गई, और इसके बाद ये 5 आ गई। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास रैंक 2 भी मिसिंग है और रैंक 4 भी मिसिंग है। वो 4 इसलिए 2 और 4 इसलिए मिसिंग है, ये है क्योंकि यहाँ पे 2 1 आ गए हैं, राइट। तो उसने 2 को स्किप कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 2 3 आ गए, तो इसने 4 को मिस कर दिया, सीधे अगली पोजीशन 5 दे दी। तो अब ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरा हम लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंस रैंक। ठीक है। तो डेंस डेंस रैंक भी एग्जैक्टली रैंक की तरह काम करता है। जस्ट ये जो हमारे नंबर्स हैं जो स्किप हो रहे हैं, उनको स्किप नहीं करता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज लगा देते हैं, तो ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड पोजीशन 2, पोजीशन 1 पोजीशन 2 कर देते हैं, पोजीशन 1 पोजीशन 2। ओके। और इसको हम रन कराते हैं। अभी जब आपके पास डेंस, ओके, डेंस DENSE, ओके। डेंस रैंक फंक्शंस में होता नहीं था। डेंस रैंक होता तो है। ओके, यहाँ पे कॉमा लगेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे ये जो पोजीशन आ रही है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है। तो इसने अपनी पोजीशंस को स्किप नहीं किया। अंडरस्टूड? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर। रैंक में और डेंस रैंक में यही छोटा सा डिफरेंस है। तो ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब ये जितनी भी आप चीजें अभी देख रहे हो, चाहे ये रो नंबर हो या रैंक हो या डेंस रैंक हो, ये सारी चीजें आती हैं आपके विंडो फंक्शंस के एरिया में, राइट। तो यहाँ पे दोनों लगाना मैंडेट है क्या? जैसे रैंक भी लगा है, डेंस रैंक भी लगा है, एक ही लगा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आपको दोनों में से एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। ठीक है। यूजुअली डेंस रैंक को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि डेंस रैंक में स्किपिंग नहीं होती, वैल्यू स्किप नहीं होती है, राइट। अगर वैल्यू स्किप हो रही है तो फिर पोजीशन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे वैल्यूज यूनिक ही होने वाली है, तो वहाँ पे आप रैंक लगा सकते हो। ठीक है। दोनों लगाना मैंडेटरी नहीं है, ये आपको समझाना था, इसलिए मैंने साइड बाय साइड आपको लगा के दिखाया है, राइट। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो रैंकिंग हुई है, ये रैंकिंग क्या हुई है, यहाँ पे केवल हमने जो मार्क्स है उसके बेस पे हमने यहाँ पे रैंकिंग लगाई है। अब सपोज हमारे पास सब्जेक्ट्स कुछ अभी तो यहाँ पे हमारे पास केवल मैथ ही है, राइट। अब मैथ्स के अलावा भी हमारे पास और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम और दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश के बाद अमित को हमने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया। ठीक है। तो ये इंग्लिश 1 3 4 5। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया। अब सपोज और क्या है, साइकोलॉजी दे दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल हुई। ठीक है। और अब हम यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स की टेबल को प्रिंट भी करा लेते हैं। स्टूडेंट मार्क्स 2 कर दिया है इसको। ठीक है। ये दूसरी टेबल है, यहाँ पे हमने मार्क्स 2 कर दिया, स्टूडेंट मार्क्स 2। और और क्या करें, यहाँ पे इसमें को हटा के कॉमा, यहाँ पे इसमें को हटा के यहाँ पे कॉमा। ओके। तो अब हमारे पास एक थोड़ी सी बड़ी सी टेबल आ जाएगी।
ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गई है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट नहीं डाला है। तो अगर यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डालोगे तो इस तरह से चीज़ें, ये जो रिपीटेड स्टूडेंट आईडी है वो नहीं आएगी। हमने नहीं डाला है तो यहाँ पे अभी आ रही है। ठीक है, सो वो एक जनरल चीज़ है, वो हम बाद में देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अभी ये जो हमने यहाँ पे रैंक फंक्शन या डेंस रैंक यूज किया था, सिर्फ हमने ऑर्डर बाई पे किया था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज पोजीशन मिले कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में किसकी कौन सी पोजीशन है, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली उसके लिए फिर से वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं जो हमने ऊपर किया था। सेलेक्ट स्टार, अब यहाँ पे हम देंगे रैंक या डेंस रैंक, जो भी आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो, रैंक ओवर। और फिर अब यहाँ पे पहले में पार्टीशन बाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पार्टीशन करना है नंबर्स को सब्जेक्ट वाइज। तो हमने यहाँ पे पार्टीशन बाई सब्जेक्ट एंड देन ऑर्डर बाई, और हमने यहाँ पे मार्क्स कर दिया। ठीक है, एज पोजीशन पोजीशन 1। ओके, और यहाँ पे फिर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टू। ठीक है, सिंपल सा है। अगर केवल एक ही फील्ड पे लगानी है तो आपको फिर पार्टीशन बाय यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जस्ट ऑर्डर बाय मार्क्स, और जो भी आप करना चाहो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिसेंडिंग लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे जो हमें रैंक अब दिखाई देंगी, आप यहाँ पे रैंक देखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रैंक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का केस की रैंक्स ये हैं, फिर मैथ्स की रैंक है। अब बाई चांस की वो हमने वही कॉपी किया, तो मार्क्स भी वही हैं, तो उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। बट आप जब भी अपने आप से इसको करोगे तो आप यहाँ पे मार्क्स भी अलग होंगे, तो यहाँ पे सबकी रैंक भी अलग अलग दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में यहाँ पे सिर्फ फिर वही काम करना है कि हर सब्जेक्ट में टॉपर कौन है वो हमें फाइंड आउट करना है। हर सब्जेक्ट में जो भी टॉपर है वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही है बात कि हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर। ओके, तो अब हम यहाँ पे हर सब्जेक्ट में हमें टॉपर फाइंड आउट करना है। तो फिर से जो यहाँ पे हमने इस तरह से क्वेरी लगाई थी, सब क्वेरी लगाई थी, हम वही यहाँ पे हम सब क्वेरी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब यहाँ हमें यहाँ पे नाम देने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें टू हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, फिर स्टूडेंट नेम चाहिए, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, और फिर मार्क्स चाहिए, राइट। और ये हमें चाहिए फ्रॉम, और यहाँ पे हम टेबल देंगे, तो हम यहाँ पे सब क्वेरी डालेंगे इंस्टेड ऑफ टेबल। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कॉमा, और यहाँ पे हम दे रहे हैं रैंक ओवर, पार्ट रैंक ओवर और ब्रैकेट में पार्टीशन बाय सब्जेक्ट, ऑर्डर बाय मार्क्स, डिसेंडिंग एज पोजीशन 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया। ये इतनी चीज समझ में आ गई, ये हमने किया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इसको नीचे ले जाते हैं, और इसको हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे दे दिया सब स्टूडेंट्स। ओके, सब स्टूडेंट हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे दिया वेयर पोजीशन 1, वेयर पोजीशन 1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये चीज समझ में आ रही सबको? वही काम जो हमने यहाँ पे ऊपर किया था, यहाँ पे वही काम एग्जैक्टली हम वहां पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रो नंबर किया था, वहां पे हम रैंक ले रहे हैं। ठीक है,
और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, हमने यहाँ पे रन कराया इसको, पार्शन, ये कहाँ पे लिख दिया हमने, पार्टीशन, पार्टीशन। ओके, तो ये क्या आ रहा है, मार्क्स। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने टेबल का नाम तो दिया ही नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टू, स्टूडेंट मार्क्स टू, ये नाम तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जहाँ जहाँ पे पोजीशन 1 आ रही है, स्टूडेंट मार्क्स 2, ओके ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पार्टीशन, या पोजीशन 1 फाइंड आउट करके इसने बस उसको लीव कर दिया है, स्टूडेंट मार्क्स 2। अभी देखो यहाँ पे, पहले मैं वहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स डाली थी तो स्टूडेंट मार्क्स में केवल मैथ्स ही था, तो वहाँ पे मैथ्स की वैल्यू दिखा रहा था। अब यहाँ पे इंग्लिश भी आ गया, मैथ भी आ गया और साइकोलॉजी भी आ गया। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में जो भी टॉप करने वाले जो बंदे हैं उनके मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। यस सर। ये छोटी सी चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगी, और ये इंटरव्यूज में बहुत पूछी जाती है। इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको आपने बता दिया कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि ये पार्टीशन बाई या विंडो फंक्शन क्या होते हैं, और रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस वेल, बहुत आसान सी चीज़ है, और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। दिस वॉज सपोज टू बी कवर्ड यस्टरडे इटसेल्फ, बट ड्यू टू द कनेक्टिविटी इश्यूज हम उसको कवर अप नहीं कर पाए थे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं केस और व्हेन स्टेटमेंट। तो केस और व्हेन स्टेटमेंट क्या होता है, केस और व्हेन स्टेटमेंट होता है जब हमें हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे हमें क्या करना होता है, हमें हमें कैटेगरीज डिसाइड करनी होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल क्रिएट करता हूँ। आई लेट मी टेक एग्जांपल फ्रॉम माय सिस्टम। तो where it is, ये पहले से मैंने सारी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए मैंने डेटा बना रखा है, इससे आपको बार बार उसमें मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम हो। तो ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, अम, और सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये 14-15 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 14-15 रोज हैं। ठीक है, इन रोज में यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी है। ठीक है, तो पहले हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के टेबल को एग्जिस्टेंस में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है कि इस डेटाबेस में ऑलरेडी एक एम्प्लॉयज नाम से टेबल है। तो यहाँ पे हम ई एम ई एम पी 2 करके दूसरी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, EMP2 करके हमने दूसरी टेबल बना ली, और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस नाउ। तो यहाँ पे EMP2 करके हमारे पास एक नई टेबल बन के आ गई है। हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। ओके, और हमने इसको प्रिंट कराया सबसे लास्ट में।
So you can see we have got a new table. Length PM this. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे सैलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, इन सैलरीज को हमें कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो भी डेटा है हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पे सपोज हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि लोअर लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर अपर क्लास के हिसाब से हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर सैलरी 60,000 से ज़्यादा है तो अपर क्लास में, 60,000 से 35,000 के बीच में है तो हम उसको मिडिल क्लास बोल देंगे, और अगर 35,000 से नीचे है तो हम उसको लोअर क्लास बोलेंगे। राइट। सो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट। अब हमें हमें यहाँ पे ई एम पी आई डी कॉमा ई एम पी नेम कॉमा सैलरी सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। राइट। और यहाँ पे हम हमें चौथी वैल्यू क्या लेनी है, हमें चौथी वैल्यू लेनी है, हमें यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करें। तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे केस स्टेटमेंट को यूज किया, और केस स्टेटमेंट में हमने दिया व्हेन सैलरी व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन सपोज 60,000 हमने यहाँ पे दिया, देन हमने यहाँ पे दिया वैल्यू इज अपर क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे दिया अपर। अगर ये नहीं होता है तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी, व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 35,000, देन हमने यहाँ पे दे दिया मिडिल क्लास। ठीक है, और अगर इन दोनों में से नहीं होता है तो हमने यहाँ पे दिया एल्स लोअर क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमने इन तीनों चीजों को दिया, और सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एल्स। राइट, जब भी केस लगाएंगे तो केस के साथ में व्हेन आएगा, और केस स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन बेसिकली परफॉर्म करा रहे हैं। राइट, तो जो कंपैरिजन वाला जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करा रहे हैं। तो जो भी आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ पे कुछ नाम देना होगा, जो आपको नाम टेबल में दिखाई देगा, एज कैटेगरी एंड फ्रॉम अब टेबल नेम EMP। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग विद केस, व्हेन, और फिर आप इसमें एक कंडीशन, दो कंडीशन, 10 कंडीशन, 20 कंडीशन, 50 कंडीशन, जितनी भी कंडीशन चाहें आप लगा सकते हैं। लास्ट में डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर दी हुई कंडीशंस में से कुछ भी नहीं है तो हमें क्या देना है वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद एंड एज, और ये जो यहाँ पे इतना सब बनाया है इसका नाम, उस कॉलम का नाम। राइट, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया, अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे सबके लिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर, मिडिल, लोअर, अपर, ये सबकी कैटेगराइजेशन आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है सबको? सर। एनी डाउट? विशेष, कुलदीप, अंकित? नो सर। ओके, ग्रेट। तो इस तरह से आप जितनी भी केसेस हैं वो क्रिएट कर सकते हो, और इनको प्रैक्टिस करके आप फाइनल रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। सो वी हैव स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स। वन लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इन SQL, that is common table expression, right? CTE। ठीक है, सो CTE क्या होता है? बेसिकली अगर हम CTE की बात करते हैं तो CTE इज बेसिकली CTE, ठीक है, CTE इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है,
ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी सी चीज होती है, लेकिन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आपने किया हो तो बहुत आसानी से बता पाओगे। तो इसका काम क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का काम ये होता है कि कोई ऐसी क्वेरी है जो बार बार हमें यूज करनी पड़ रही है। कोई ऐसी चीज है जो हमें सपोज बार बार यूज करनी पड़ती है। तो अब हमें क्या है कि हमने उसकी एक अलग से क्वेरी बना के हमने रख ली, राइट। अलग से क्वेरी बना के रख ली। अब हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अम, हमें हमें हर दिन फाइंड आउट करना है कि हमारी कंपनी में हाईएस्ट अर्नर कौन है, राइट। आज हाईएस्ट सेल किसने करी है, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। या हमने एक मार्कर बनाया कि हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसने दिन में 50,000 से ज्यादा की सेल करी है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसी टेबल बनानी है तो हमें क्या करना होगा? हमें उस सैलरी की एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, उसकी सैलरी भी चाहिए। तीनों चीजें चाहिए कि उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है और सैलरी क्या है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो हमने ऊपर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल का लिया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में अब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अलग टेबल में है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एक टेबल में है, लेकिन सैलरी हमारे पास दूसरी टेबल में है, right? So every time what we have to do is we have to for example what we have to do is अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह से देना पड़ेगा सेलेक्ट। हमें चाहिए हमें दो टेबल से चाहिए, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज ईएमपी, और हमने दिया लेफ्ट ज्वाइन, और हमने दिया यहाँ पे सैलरीज सेल टेबल ऑन। और यहाँ पे हमें हमें क्या देना पड़ेगा? हमें किसकी पे, तो emp.emp id है ना? हाँ, emp id इज इक्वल टू सेल डॉट emp id, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? emp.emp id कॉमा emp.emp और तीसरा है हमारे पास सेल डॉट सैलरी। ओके, ये हमें देना पड़ेगा। तो इससे क्या आएगा? इससे हमारे पास आ गया कि हर हर एम्प्लॉय का के नाम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा वेयर सपोज लेट्स से सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी की जगह से सेल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सैलरी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे सैलरी ही दे रहा हूँ, ठीक है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा? नियर हाइफन, ये क्या है? कहाँ पे हमने मिस कर दिया? यहाँ पे तो हमने सेल डॉट सैलरी, ये हम कहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयज ये ठीक है। कहीं और हमने कुछ डाल रखा है क्या? तो ये है। हम्म, ओके। सो हमने इसको रन कराया। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा? ये आउटपुट कहाँ पे आएगा? इसको हम लास्ट में ही करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे बीच में आउटपुट फिर हमें मिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में हम ये क्वेरी डाल रहे हैं। तो ये इसके टेबल्स ऊपर हैं, तो आपको जब भी इसको रेफर करना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेबल्स इसके ऊपर हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे रन कराया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप
यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी हमें हमारे पास ये सैलरी आ रही है, यहाँ पे जितनी भी 50,000 से ऊपर वाली सैलरीज हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो सैलरी है, यहाँ पे 49,000 भी है, और तो सारी ज़्यादातर 50,000 से ही हैं। तो हम यहाँ पे कुछ और भी करते हैं, हम यहाँ पे 60,000 के ऊपर वाली कर लेते हैं। हमने क्राइटेरिया बना लिया है कि 60,000 से ऊपर की डेली की जो सेल कर रहा है उसकी हमें लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको लिया और यहाँ पे इसको हमने रन करा दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो जो 60,000 से ऊपर वाले हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके। अब आपको क्या करना होता है, आपको ये क्वेरी ऑन अ डेली बेसिस चलानी पड़ती है। ठीक है, तो डेली बेसिस आपने इस क्वेरी को लिखा और डेली बेसिस पे इसको रन कराया। ठीक है। या हो सकता है कि आपको ये काम मोर फ्रिक्वेंट बेसिस पे करना हो। राइट। अब ये एक छोटी सी क्वेरी दिख रही है, हो सकता है ऐसी कोई बड़ी सी क्वेरी हो, तो उस बड़ी सी क्वेरी को भी आपको बार बार लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेरी को एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे दिया विद हाई अर्नर्स, हमने यहाँ पे दे दिया विद हाई अर्नर्स, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट में हमने इस क्वेरी को डाल दिया। यहाँ पे ये हमने कट किया और इसको यहाँ पे इसके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरह से इस क्वेरी को डाल दिया। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे रन कराया, सिर्फ हमने रन कराया। ठीक है, हम्म, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाई अर्नर्स एज, इनवैलिड सिंटैक्स, मैंने कहाँ पे मिस कर दिया। ये कहीं पे फिर ब्रैकेट मिस हो रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे हमने ब्रैकेट मिस किया है। यहाँ पे उसे लगता नहीं है, लेट्स सी। देखो इसमें अभी पता नहीं इसमें कहाँ पे क्या एरर आ रही है। ये बार बार इंटैक्ट नियर दिस दे रहा है, यहाँ पे तो हमने कुछ दिया भी नहीं है। और और कहीं पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी सारी क्वेरीज तो हम पहले ही चला चुके हैं। यहाँ पे भी ये सारी क्वेरीज तो रन रन की हुई क्वेरीज हैं। ओके, अब इसमें करना क्या होगा, जैसे ही अगर हमने ये बना लिया, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना लिया, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाने के बाद सिर्फ हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जस्ट आपको यहाँ पे हाई अर्नर्स का नाम देना, दैट्स इट। राइट, जस्ट आप यहाँ पे हाई अर्नर्स का यहाँ पे आप नाम दोगे और इसको रन कराओगे। ओके, देखो रन होके भी आ गई। ठीक है। ओके, ये एलोन यहाँ एलोन रन नहीं करती है, चूंकि ये कोई आउटपुट प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो ये एलोन रन नहीं करेगी, इसी वजह से वो एरर आ रही थी। ये अलग अलग एनवायरनमेंट में ऐसा होता रहता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गया और इसको जस्ट हमने यहाँ पे इस तरह से कॉल करा लिया। अब अगर हम यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दी, सपोज हमने यहाँ पे दे दी 55,000 से ज़्यादा वाले, राइट। तो हमने इसको रन किया और इसको यहाँ पे इस तरह से हमने रन कराया, तो अभी यहाँ पे आपको 55,000 से ज़्यादा वाले मिल गए, राइट। तो आप इस क्वेरी को कहीं भी बना के सेव करके रख सकते हो एंड ऑन रेगुलर बेसिस आपको जस्ट आप 50-55 हज़ार से ज़्यादा या हाई परफॉर्मर्स वाले वाले चाहिए, तो आपको सिंपली बस यहाँ पे इतना ही लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाई अर्नर्स, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लगाने की, कंडीशन लगाने की, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम की तरह दिया है, यहाँ पे आपने एक टेबल नेम की तरह दे दिया, ये ऑटोमेटिकली जाएगा इस क्वेरी को पिकअप। अभी यहाँ पे हाई अर्नर नाम से कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, रिमेंबर हाई अर्नर्स नाम से कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे ये सिर्फ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही आप इसको डालेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे ये इसको सर्च करेगा और इसके अंदर जो भी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कराएगा और वो आपको हम यहाँ पे आउटपुट प्रेजेंट करके देगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है, तो आपके जो इंटरव्यू जो बेसिकली सीक्वल के जो इंटरव्यू को क्लियरिंग होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, राइट। तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, राइट। हर डिपार्टमेंट की हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है ऑन अ डेली बेसिस, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो कि उसी तरह की आपने क्वेरी लगाई। तो अब यहाँ पे अगर हम इन टेबल्स में देखें तो यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट नेम अलग है, यहाँ पे सैलरी अलग है। तो हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दोनों टेबल के बीच में ज्वाइन लगाना पड़ेगा, फिर ग्रुप बाय करना पड़ेगा, फिर ग्रुप बाय करके एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी और फिर जाके आप यहाँ पे पूरी प्रोसेस कर पाओगे, राइट। लेकिन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू जस्ट आपने वो एक क्वेरी बना के रख दी और इसके बाद सिंपली सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम द टेबल नेम, दैट्स इट, राइट। तो उससे क्या होगा, फिर आपको बार बार अलग अलग क्वेरी रन नहीं करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, बेटर स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, सो हमने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे हमने अपने सिलेबस में कवर कर ली हैं। अभी और कोई चीज इसमें आई डोंट रिमेम्बर कि कोई और भी चीज इसमें है। सो आवर एसक्यूएल इज ऑलमोस्ट ओवर। आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट टुडे जिसमें ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आई विल सेंड यू दैट असाइनमेंट। सो जिससे आप प्रैक्टिस करके तो आप यहाँ पे अपनी टेबल क्रिएट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या वो जो ओरेकल वाला एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, आप वहाँ पे भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन सारी चीजों में, ठीक है। सर कल ठीक है, क्लास है? आई विल अपडेट यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं सो वी कैन कीप द क्लास, अदरवाइज यू कैन यूटिलाइज टुमारोज टाइम फॉर द